सहकारिता की सामुदायिक शक्ति से माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेशी से 2021 से स्थापित सहकारिता मंत्रालय माननीय सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में आज सहकारिता का ढांचा मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री जी का। तो आज पैक्स, दूध मंडली, मत्स्य मंडली, अभिनव सहकारी समिति, महिला किसान, पशुपालक बहनें, व्यवस्थापक, सहकारिता से जुड़ी युवा महिलाएं, ऐसे विविध सहकारी प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सब उत्सुक और उत्साहित हैं माननीय मंत्री जी के साथ संवाद के लिए। माननीय मंत्री जी के अनुमति से हम ये संवाद का आरंभ करते हैं। वैसे एक तो डरे बगैर बोलना और सच बोलना। जो सच है, आपकी कठिनाइयां हैं, आपको फायदा हुआ है या तो आपके सुझाव है क्या करना चाहिए इसके, वो डरे बगैर बताइएगा। और आप बताएंगे तो आपके जैसी कई बहनें और आपके जैसे कई पैक्स के लोगों को ये सुधार का फायदा मिलेगा, क्योंकि अंततोगत्वा ये सारी योजनाएं पैक्स के जो मेंबर है या डेयरी के मेंबर है या मत्स्य पालन मंडली के मेंबर है, उनके फायदे के लिए। तो सरकार ने जो योजनाएं करी, इसका अच्छा अनुभव है तो वो भी बताइए। गुजरात में तो मैं जानता ही हूं कि सबकी संपन्नता बहुत बड़ी है। जिन्होंने दूध के व्यवसाय के साथ गुजरात में जुड़े, वो सबकी संपन्नता बड़ी है। मेरे गांव में जब डेयरी नहीं थी तब 3 मकान थे पक्के, और डेयरी आने के बाद 5 साल में मेरे गांव में कच्चे मकान सिर्फ 60 थे, बाकी सारे पक्के हो चुके थे। तो ये मैंने देखा है, जमीन पर देखा है, और अब मंत्रालय में देख रहा हूं तो उसमें भी मालूम है। परंतु आप बिल्कुल बेखौफ होकर, जरा भी डर रखे बगैर बताइए। गुजरात के साबरकांठा के ईडर से 25 वर्षीय नम्रताबेन पटेल हमारे साथ हैं। आइए उनके साथ बात करें, अपने विचार साझा करें। नर्मदाबेन। आ प्रोग्राम में उपस्थित सौ बधाने मारा राम राम। मारू नाम चौधरी नम्रता मनीष कुमार से, गाम देत्रोली, तालुको ईडर, जिल्लो साबरकांठा, उम्र 25 वर्ष, अभ्यास BSc B.Ed करेलो छे। सर, હું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું, જેને આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને શરૂઆત કરી। અને ત્યારબાદ હું અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું, જેમને 4 વર્ષથી આ સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે અને આ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે। તેથી અમને ઘણી માર્ગદર્શકતા મળી છે અને આ પ્રોગ્રામમાં આજે ઉપસ્થિત રહીને બોલવાનો મોકો મળ્યો છે। હું 2021માં મારા મેરેજ પછી કોરોના સમય ચાલુ હતો, ત્યારથી મેં ઘરે રહીને બીજું કોઈ કામ ન કરી શકતા, તો મેં પશુપાલનનો વ્યવસાય અપનાવ્યો। શરૂઆતમાં મેં 2 ગાયોથી શરૂઆત કરી હતી। ધીમે ધીમે મને એમાં સફળતા મળી તો હું આગળ વધતી ગઈ। મને એવું લાગ્યું કે આમાં હજી કયા સુધારા વધારા કરી શકીએ તો આપણે આનાથી પણ વધારે પ્રોફિટ મળીએ। તો હું અને મારા મિસ્ટર જે એન્જિનિયરિંગનું કરેલો હતા, એ વ્યવસાય કરતા હતા, એમનો ધંધો હતો પર્સનલ, એમને પણ છોડીને મને સપોર્ટ કર્યો। તો ધીમે ધીમે મેં આ ધંધામાં આગળ વધવાનું વિચાર્યું। તો અમને એમ થયું કે આમાં હજી શું કરી શકીએ તો આપણને વધારે પ્રોફિટ મળે। તો મેં બ્રીડનો ઉછેર કરવાની શરૂઆત કરી। મેં પહેલાં તો બધાને સજેશન લીધા કે ગાયો તમે ઘરની છે તો એને આપી। મારા સાસુ સસરા કરતા જ, પણ મારા સાસુ અમુક કારણોસર પેરાલિસિસ થઈ ગયા, એ બિલકુલ બેડ રેસ્ટ છે। તો મારે અચાનક ઉપાડવું પડ્યું। તો મેં શરૂઆત કરી તો મને એમ થયું ને આમાં બ્રીડિંગનું કામ કરે। ત્યારે અમે સાબર ડેરીથી ખૂબ સારો સહકાર મળ્યો। તો અમને એમને પણ સલાહ આપી કે તમે બ્રીડિંગ કરો તો એનાથી તમે ધીમે ધીમે એમાં દૂધની ક્ષમતા પણ વધારી શકો છો, એની દૂધની ક્વોલિટી પણ વધારી શકો છો। અત્યારે મારી પાસે 17 ગાયો અને 6 વાછડીઓ છે। એમાંથી મારી પાસે 17 ગાયોમાંથી 11થી ઉપરની ગાયો મારી A1 A2 સર કહે છે તે A2 ગાયો છે ને બીજી A1 છે। A2 ગાયોનું દૂધ આપણે લઈએ છીએ તો એનાથી ઘણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય છે, જેમાં એમિનો એસિડનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે। તો A2 ગાયોની અમે શરૂઆત કરી। તો પહેલાં અમે પંજાબથી લાવ્યા, બેંગ્લોર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ એમ વગેરે જગ્યાએથી અમે
સારી સારી ઓલાદો ભેગી કરી અને એના પર બ્રીડિંગ કર્યું. બ્રીડિંગ કરવાથી અત્યારે મારી પાસે એક ગાયનું દૈનિક દૂધ 38 થી 40 લીટર દિવસનું છે. અત્યારે હું 17 ગાયો છે, એમાં અમુક ડ્રાય પીરિયડમાં પણ છે, તો હું 245 લીટર આખા દિવસનું દૈનિક દૂધ ભરાવી રહી છું. અત્યારે મારો 10 દિવસનો પગાર 80,000 છે, જેમાંથી મને ચોખ્ખું બેનિફિટ 25,000 મળે છે. તો આ સાલનું 2025નું મારું દૂધ 24 લાખનું થયું છે, જેનો ગામની ડેરીનો મને ભાવ ફેર 2,40,000 મળે છે અને સાબર ડેરીનો ભાવ ફેર મને 4 થી 5 લાખ મળશે. અને હું 10 એકર જમીનની માલિક પણ છું, જેમાં લોન કોની લીધી હતી તે? ગાયો હા, ગાયો સર અમે અમારી રીતે જ લાવ્યા હતા. તમારી રીતે જ લાવ્યા? ખેતરમાંથી આવક આવે એમ એક બે કરીને 2025 સુધી અમે 17 ગાયો ભેગી કરી છે. લીલો ચારો કેટલો ખવડાવે? લીલો ચારો અમે એક ગાયનો 40 કિલો એક ટાઈમનો મળે છે. સર અમારી પાસે 10 એકર જમીન છે, એમાં બટાકા, મગફળી અને મકાઈનું વાવેતર કરે. જે મકાઈનું મેં 11 એકરનું વાવેતર કર્યું હતું આ સાલે, 11 એકરનું મેં સાયલેજ પોતે ઘરે બનાવ્યું છે, જે સાબર ડેરીના માર્ગદર્શનથી મેં સાયલેજ પોતાનું ઘરે બનાવ્યું છે. આવું અમે 3 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ, તો અમને એ પણ બેનિફિટ આમાં મળે છે કે ઘાસચારો તમારે બહારથી ના લાવવો પર. અને અત્યારે બનાવ્યા પછી 1 મહિનાનો જે અમને તકલીફ પડે એ સાબર ડેરી અમને સાયલેજમાં સબસિડી આપે છે. એના કારણે સાયલેજ અમે મેળવી શકીએ છીએ. આગળ ભવિષ્યમાં મારું આયોજન છે કે આ માએ હું 1,000 લીટર દિવસનું દૂધ કરે, સારી ઓલાદોમાં ઓછી ગાયો રાખીને વધારે દૂધ અને એમાંથી વધારે પ્રોફિટ મળે. તું નક્કી કર, તારી જેમ 2 દીકરીઓને તારે તૈયાર કરવાની. સર એક બેનને તો મેં મારા ગામમાંથી તૈયાર કરી છે, એના સાસુ ઓફ થઈ ગયા હતા એના મેરેજના થોડા ટાઈમ પછી. એ બેન મારી જોડે આવે છે ને એને મારાથી પ્રેરણા લઈને એને 150 લીટર દિવસનું દૂધ કર્યું છે. અત્યારે તારો ફોટો લગાવે છે ઘેર? ના સર, પ્રેરણા લે તો ફોટો લગાવવો પડે ને. ના સર, આ એનો ફોન નંબર મને આપજો, હું કહીશ તારો ફોટો લગાવે. 2 વર્ષથી સર મેં મારા સાસુને 17 લાખ ખર્ચો કર્યો, એ બધું મેં દૂધમાંથી કર્યો. અત્યારે દૂધમાંથી મારે 1 મહિનાના 80 થી 90,000 બચે છે. અને એ ગાયોના લીધે આજે હું તમારી વચ્ચે બોલવાનો મને મોકો મળ્યો છે. નકર અત્યારે મોટા મોટા અધિકારીઓ બનવું પડે, અધિકારી બન્યા પછી તમને મળવા માટે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે. મારે એપોઇન્ટમેન્ટ નથી લેવી, પણ મને સામેથી મોકો મળ્યો, તમે અહીંયા આવીને મળો સાહેબને. એ બધા સાહેબ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. सब समझ पाए इसलिए हिंदी में बोलता हूँ. गायों की सेवा करने से मुझे मिलने की बात तो बहुत छोटी है, आपके बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा. इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता. हमेशा गाय की सेवा करनी. हाँ सर. तो खेती पशुपालन से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज सहकारिता अपना रंग दिखा रहा है, और ऐसा ही एक क्षेत्र है मत्स्य पालन. तो मछली मंडली से जुड़ी है होथा डिम्पल बहन, जो कि आज हमारे बीच हैं. उनको आमंत्रित करेंगे अपनी बात रखने के लिए. डिम्पल बहन. સૌ પ્રથમ સૌને મારા નમસ્કાર. ક્યાંથી છો તમે? અરવલ્લી. અરવલ્લી. તળાવમાં માછલી પાલન કરો છો? ડેમમાં. ડેમમાં? હા. કયો ડેમ? બામણા હાથમતી જળાશય. ठीक है, बताइए. મારું નામ હોથા ડિમ્પલબેન વિશાલભાઈ, ગામ ગંભીરપુરા, તાલુકો ભિલોડા. હું અરવલ્લી, જિલ્લો અરવલ્લીની રહેવાસી છું. હું ધી ભિલોડા વિભાગ આદિવાસી મત્સ્ય સહકારી મંડળીમાં જોડાયેલી છું. અમારી મંડળીને સહકાર વિભાગ તરફથી 5 લાખ રૂપિયા ખર્ચ પેટે મળેલ છે. તે બદલ હું સરકારશ્રીને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તેનો ખર્ચ અમે ઓફિસ બનાવવા અને એમનો જે રિનોવેશનનું કામ છે એ અને સભ્યપદને ટ્રેનિંગ આપવા માટે ખર્ચ્યા છે. અમારી મંડળીને સહકાર તરફથી ફિશ કેચ કલ્ચરની સહાય મળી છે. એ દરમિયાન હું સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. और अब हमारे बीच हैं नोजीबेन नितिश भाई चौधरी, जो कि बनासकांठा गुजरात से पधारी हैं. મારું નામ ચૌધરી નોજીબેન નીતિશભાઈ, હું ચાંગડા ગામની વતની છું અને અમારી મંડળી દૂધ ઉત્પાદક સહકાર મંડળીમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું. તમે કોમ્પ્યુટર ચલાવો છો? કોમ્પ્यूटर ऑपरेटर क्या तरीके. सीखा? हैं? कहाँ सीखी आप? सर हमारे वहाँ से सीखी, मंडली में से, मंडली वाले सीखवा, मंडली में से, आपकी शंकर भाई सोसाइटी ने सिखाया? सोसाइटी में से
શંકરભાઈ ચૌધરી और સાહેબ गुजराती મહિલા में કર્મચારી તરીકે गुजराती में टाइप करती है आप? हाँ गुजराती में तो फैट गिनना ये करना हाँ, सब आता है? फेट एसएनएफ निकाल दी। भाई और ताली सब- बजाओ इनके लिए सभी लोग। और सब हमारे गांव में आप आए थे न, तब से हमारे गांव में माइक्रो एटीएम की शुरुआत हुई। पहला हमारे गांव में कोई माइक्रो एटीएम के और कोई नहीं थे, એટલે हमारे गांव वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता था। अब आपको मालूम है माइक्रो एटीएम हाँ, में माइक्रो नहीं सूद ब्याज कितना लगता है मालूम है? हाँ सर, ये तो एमनो ब्याज कोई ना लगे सभी मेंबर बन गए हैं, सभी मेंबर को मिलता है? ना, सभी मेंबर नहीं है। दो हमारे ग्राहक मित्र છે ડેરીમાં ગ્રાહક મિત્ર છે 675, તેમાંથી 200-250 જેટલા જ। 250-250 लोग बने हैं। हाँ, दूसरे लोग तो ऑनलाइन। रोज कितना दूध आता है आपकी? हमारी मंडली में 12,000 लीटर। 12,000 लीटर। हाँ, पहला हमारी डेयरी में જ્યારે અમારી મંડળીની गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं आता અમારી है। મંડળીની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 લીટર દિવસનો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। એમનો એકનો 1 વર્ષનો 1 કરોડનો दूध આવે અમારી 1 करोड़। हाँ, भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। માઇક્રો એટીએમ ની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈ નો આભાર માનજો। हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था અમને और 50,000 उन्होंने રૂપિયાનો बड़ी ક્રેડિટ क्रांति કાર્ડ करी। પણ આપ્યો છે। आज बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था। मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में। और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और अब हमारे पार्टी से हंसाबेन पटेल जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। ती चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली से वे जुड़े हैं। બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। હું હંસાબેન હરખાભાઈ પટેલ, ગામ ચંદનનગરી, તાલુકો વિરમગામ, જિલ્લો અમદાવાદથી આવી છું અને અમારી સહકારી મંડળી કમિટીમાં હું સભ્ય છું, કમિટીમાં સભ્ય છું। અને હાલ અમારે સહકારી મંડળીના 2027માં 100 વર્ષ પૂરા થાય અને અમને ગર્વ છે એવો કે તમને આમંત્રણ કર્યું, અમારે ઉજવણી કરવાની છે અને જરૂરથી તાલુકો કયો તમારો? તાલુકો વિરમગામ। હે? તાલુકો વિરમગામ, વિરમગામ તાલુકા। હા, જિલ્લો અમદાવાદ, ચંદનનગરી ગામ। અને અમને રાજ્ય સરકારથી સહાય મળી, અમને મોટો પ્રથમ ગોડાઉન મળ્યું, અમને મોટું ગોડાઉન કર્યું છે અત્યારે। તો અમને 40 લાખ રૂપિયાની અમને સહાય મળી સહકારી મંડળી આલા ગોડાઉન બનાવ્યું છે? ગોડાઉન મોટું બનાવ્યું। વરસાદ કેવો પડ્યો છે વિરમગામમાં? વરસાદ આ વખતે પડ્યો છે? બહુ પડ્યો, સારો છે। અમારે તો બહુ પાણી ભરાણું। તમે પોતે ખેતી કરો છો બેન? ના, તમે સહકારી નથી કરતા? મંડળી, સહકારી મંડળી જ ચલાવો છો? સહકારી મંડળી ચડવી। ભલે બેસો। કઈ સૂચન છે તમારું? સૂચન છે પાણી, અત્યારે અમને પાણીનું પુરવઠોનું અમને વસૂલાત કરવાનું આપ્યું છે સહકારી મંડળી વાળા। હા, તો એ પાણી દરેક ઘરનો ટેક્સ વસૂલવાનું આપ્યું। પાણી સમિતિમાં વેરો ભરવાનું, કોઈ પહેલા ભરતું નતું, 20% જ થતું હતું અને અત્યારે આ સહકારી મંડળી તરફથી અમારે 100% થાય। 100% એટલે સહકારી ये क्या कह रहे हैं सुनिए आप। इनके गांव में पानी का टैक्स वसूलने का काम इनकी कोऑपरेटिव को दिया है। पहले 20% लोग ही टैक्स भरते थे, पानी का जो सालाना टैक्स है वो, 100% अब 100% देते हैं। इसका मतलब ये होता है बहनें बहनों को ही टैक्स देती है, भाइयों को टैक्स नहीं देती है। मगर अच्छा है, बहुत सारी कोऑपरेटिव्स ने ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि सरकार पाइप लगा देती है, नल लगा देती है, टंकी बना देती है, आपके यहाँ संप बना देगी, मोटर ला देगी,
फिर रिपेयरिंग कहां से होगा? गांव वाले टैक्स भरेंगे तो ही रिपेयरिंग होगा ना। 12 મહિના શું 5-5 વર્ષ હુંડી નતા ભરતા વેરો અને હવે 100% ભરે વેરો। नहीं, ये जो पैक्स के सर पर जिम्मेदारी, मतलब एक पहले नहीं कर सकती थी पैक्स, हमने अब ऑथोराइज किया है मॉडर्न बायलॉज के अंदर कि भाई आप गांव के हर जल नल की योजना का टैक्स वसूल कर सकते हैं, इसका मेंटेनेंस का काम भी कर सकते हैं। तो आपके गांव में सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को एक काम के लिए एप्लीकेशन करनी चाहिए। इनको जैसे मिल गए आपको भी मिल जाएगा। और अगर महिलाएं टैक्स उगाही का काम करेगी तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि समझाना तो घर में महिला को ही है। सच्ची बात है। અમારે કોમ્પ્યુટર આવી થઈ પછી એક છોકરાને રાખવી છે कॉम्प्यूटराइज हो गया? ના એક બાબાને રાખવી છે અને એ પછી ઘર બેઠા આધાર કાર્ડ આયુષ્માન કાર્ડ પાન કાર્ડ બધું કાઢી દે। ઘર બેઠા ખેડૂતને બહાર જવું ના પડે। અને અત્યારે આ ટ્રેનિંગ આવી દિલ્હીથી ગુડગામથી, તો અમારા ગામનો એક છોકરો કોલેજ ભણી રહ્યો ને તરત અહીંયા ટ્રેનિંગમાં મોકલો અને અત્યારે અમને સહાય મળી 1 લાખ રૂપિયાની અને ડ્રોન મળ્યું। અને ડ્રોનથી એ દવા છાંટે 5 ગામ ફરતા અને દવા છાંટે અને ઓછી કિંમતમાં અને ડ્રોન બેને લીધું છે? ડ્રોન દવા છાંટવાનું, દવા છાંટવાનું બેને લીધું છે? હા મંડળીએ લીધું છે કે બેને? મંડળી તરફથી। મંડળી તરફથી પણ સરકાર સહાય આપી। પણ કોઈ છંટાવે છે દવા? હા, ફરતા ગામમાં બહુ છંટાવે। એમ? ઓછી કિંમતમાં હોય એટલે છંટાવે જ ને ખેડૂત। ઓલા પંપ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्रोन भी लाई है भाई। ड्रोन से दवा छिड़कने का काम कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। હજી સાહેબ એક વિનંતી છે કે અમારે થોડીક જમીન અમારે જોઈ છે આ સહકારી મંડળીમાં, પછી અમારે તમે બેંકમાં બેંકમાં લખીને મોકલો એકવાર। મશીન લાવવું છે બેંકમાં લખીને મોકલો। ઘર બેઠા 50 છોકરાઓને રોજી રોટી મળે એવું બનાવવું છે। સારું। और अब हम आमंत्रित करेंगे गायत्रीबेन पटेल को, जो अपने विचार रखेंगे। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सहकारी मंत्रालय जो कि आपकी अध्यक्षता में जो शुरू किया है, तो उसकी वजह से जो है तो कोऑपरेटिव को एक अलग ही बूस्ट मिल गया है सर। और आज मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी आनंद जिले से हूँ जहाँ पे आज त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया सर। पार्लियामेंट में त्रिभुवन काका के नाम का बहुत विरोध किया था कांग्रेस ने, और मैंने जमकर खिंचाई की थी कि इनके नाम से ही होगा। ताली बजाई थी सर उस टाइम पे भी मेरी आंख में ऐसे ही आंसू आए थे। आप अकेली नहीं है, पूरे गुजरात की महिला त्रिभुवन काका को आशीर्वाद देती है। बहुत बड़ा काम हुआ है कि इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, और इन्होंने जो सच्ची कोऑपरेटिव की नींव डाली थी, इसके कारण आज गुजरात की 36 लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार कर रही। 80,000 करोड़। ये जो बहनें यहाँ कह रही ना 1 करोड़ का मैं दूध भरती हूँ, मैं 15 लाख का दूध भरती हूँ, 20 लाख का, ये त्रिभुवन काका न होते तो कभी न होता सर। और मैं गायत्री पटेल उसी अजरपुरा गांव से हूँ जहाँ से अमूल की पहली नींव रखी गई थी। और 1964 में जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक रात के लिए रुके थे, और फलस्वरूप एनडीडीबी की रचना हुई और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। मेरी बात करूँ तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट किया है। मेरे पिताजी जो है तो वो मुझे वकील बनाना चाहते थे, और मेरी इच्छा थी कि मैं शादी करके फॉरेन चली जाऊंगी, और मेरी शादी भी उसी लड़के से हुई जो यूएसए में था। लेकिन कुछ कारणों से मेरा जाना नहीं हो पाया, तो उनको वापस आना पड़ा, और आने के बाद मेरे ससुर जी की एक्सीडेंटली डेथ हो गई, और थोड़ी फिनेंशियली कंडीशन भी हमारी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे सोचा कि अभी ऐसा कुछ व्यवसाय सोचना पड़ेगा कि मम्मी को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, तो इसके लिए हमने पशुपालन व्यवसाय को चूज़ किया। तो उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि भैया ये लोग फैमिली बैकग्राउंड मतलब घूमने फिरने वाले लोग हैं, तो पशुपालन में कैसे ही टिकेंगे, तो 1-2 साल में शायद बंद कर देंगे।
तो हम लोगों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसा ऐसा काम किया सर कि गांव लोग भी सोचने लगे कि भैया हम लोग तो ये सोच रहे थे कि ये लोग को कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये लोगों ने सच में साबित कर लिया कि पशुपालन व्यवसाय में ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो उन्हीं लोगों ने मुझे अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में चुना। आपके पास कितने पशु है? सर मेरे पास 80 पशु है। 80 पशु है। हाँ। और अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रूप में चुना गया और मैं मेरे जैसी कितनी बहनों को आज प्रोत्साहन देती हूँ कि भैया अब लोग घर में से बाहर निकलो, फ़ोन में ज़्यादा आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, इससे पहले आप उसे खा जाओ। और पशुपालन के साथ साथ में उनको मैं यही सुझाव देती हूँ कि अकेले पशुपालन के ऊपर निर्भर नहीं रहना, इसके साथ आपको अलग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, आपको इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा। तो इसके साथ जैसे मैं गोबर से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मशरूम फार्मिंग भी करती हूँ, हनी बी कीपिंग भी करती हूँ और एसएचजी भी चलाती हूँ, जिससे बहनों को साथ जोड़ के मैं एक हनी बी कीपिंग का ग्रुप भी चलाती हूँ जो एनडीडीबी और अमूल की सहायता से बना है सर। और यही सब एक्टिविटीज़ के लिए आप श्री के द्वारा ही मुझे इंडियन डेयरी एसोसिएशन वेस्ट जोन का अवार्ड भी मिला है सर। और मेरी ये उपलब्धि यही है सर कि यही व्यवसाय की वजह से मुझे आपके सामने दोबारा बोलने का मौका मिला है। और जो मैंने इच्छा की थी कि मैं फ़ॉरेन जा कर के आऊँ, यही पशुपालन की वजह से मैंने मान सम्मान सब कमाया। आज मैं अजरपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरपर्सन तो हुई, एक बार यूके भी जाके आई, 2 बार यूएसए भी जाके आई, लेकिन मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगा। मुझे बस मेरे पशु चाहिए और मेरे फार्मर्स चाहिए। उमेशी झाला है, गाम काणियल है, तालुका दसकोई, जिल्ला अमदावाद है। છેલ્લા લગભગ 5 વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે સંકળાયેલી છું। પોતે પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું। 1982માં મારા ઘેરથી સરપંચ કાણિયેલ ગામમાં એક્સિડન્ટથી ઓફ થઈ ગયા। 2 બેબી સર, 2 બેબી છે મારા ઘેરથી ઓફ થઈ ગઈ। 40 વર્ષ થઈ ગયા છે। 2 બેબી, મોટી બેબીને ભણાઈ અત્યારે પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા, નાની બેબી પોતાના ગામમાં સરપંચ તરીકે ફરજ બજાવે અને 40 વર્ષ સાહેબ એકલા હાથે હાલ અત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતી 5 વર્ષથી 5 આયમ બનાવું છું। કેન્દ્ર સરકારની 12 પશુની યોજનામાં મેં કર્ણાટક હરિયાણા જઈ અને સીધી ત્યાં જઈને પશુપાલન જોઈને અહીં સીધું વિચાર કર્યો કે મારા તબેલો બનાવો। તાત્કાલિક બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં પહોંચી હલદરવાસ, ત્યાંથી લોન લીધી। લોન લઈને 12 ગીર ગાય લાવી સાહેબ, 12 ગીર ગાય। આજે 12 ગીર ગાય મારા તબેલો મેં બનાવ્યો સાહેબ। આજે પ્રાકૃતિક ખેતી મારે કરવાની પોતે સાહેબ, મારા ઘેરથી તો 40 વર્ષથી નથી સાહેબ। અને એટલું જ આપણે આજે 10 વીઘાની પોતે ખાતેદાર। કયા ગામના છો તમે? દસકોઈ તાલુકો, અમદાવાદ જિલ્લો, કાણિયેલ ગામ। કાણિયેલ? હા, દૂધ મંડળીમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી ચેરમેન તરીકે ફરજ બજાવું છું। મારા કાણિયેલ ગામમાં દૂધ મંડળીનું મકાન નહોતું સાહેબ, તે છતાં મેં મારી કેસીસી કરી, બેંકમાં જઈને મારી જમીન ઉપર કેસીસી લઈને દૂધ ઘર બનાવી અને મેં મારા ગ્રાહકોને જે આજુબાજુ ફરતા તેમને દૂધ મંડળી, મારી બહેનો ઘરના આંગણા આવશે અને ઘરના બાળકોને ભણાવશે, દૂધ એક ભેંસ રાખશે, જીવન ચલાવી શકે। દૂધ ઘર મેં જાતે બનાવ્યું। અત્યારે 4000 લીટર દૂધનો વહીવટ કરું છું સાહેબ। અને મારા भाई जोर से ताली बजाइए जरा इनके लिए। કેન્દ્ર સરકારને જે ગીર ગાયના 900 રૂપિયા નિભાવ ખર્ચ જે કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કર્યો, મારા ગામમાં 32 ગાયો સાહેબ મેં અને 32 ગાય 32 જણના હાજે અત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાનું સૂચન આપું છું। વત્તા 5 કેટલી જમીન છે તમારી જોડે? 10 વીઘા જમીન છે, 10 વીઘા પ્રાકૃતિક સાહેબ। તમે શું કરો છો પ્રાકૃતિક ખેતીમાં? શું ડાંગર વાવો છો? ડાંગર, ઘઉં, જુવાર, શાકભાજી સાહેબ। આજે કોણ લઈ જાય છે શાકભાજી? અમે સાહેબ એક શાકભાજીનું અહીંયા બનાવી રહ્યા, તૈયાર કરી રહ્યા। નહીં, ડાંગર, જુવાર ને ઘઉં તમારા મોંઘા ભાવે અમૂલ અને આપણી ભારત બ્રાન્ડ કોઓપરેટિવ જે આપણે નવી બનાવી છે ખરીદી લેશે। સરસ સરસ, શાકભાજી હું કરું છું। તમારા સેક્રેટરીને કહેજો, એ તમારું એમની જોડે જોડાણ કરાવી દેશે। જેટલા ઘઉં થશે, જેટલી ડાંગર થશે, જેટલું જુવાર થશે, બધો એ લોકો મોંઘા ભાવે ખરીદી લેશે। ઘઉં આ સાલ 2 વર્ષથી ઘઉં સાહેબ અમદાવાદમાં આપું છું। આ વર્ષે મેં સાહેબ જે 400 રૂપિયા ઘઉં, એ ઘઉં આજે મેં 900 રૂપિયા વેચ્યા સાહેબ, પ્રાકૃતિક ઘઉં।
900 રૂપિયાના 20 કિલો ઘઉં પોતે વેચા ક્યાં? અમદાવાદમાં ખાવા માટે આપે ડોક્ટરો. લોકોને આપે? ડોક્ટરો ઘેર આવીને લઈ ગયા સાહેબ. એમને ભરોસો છે તમારો ઘઉં પૂરો organic? પૂરો ગોપકોનું સર્ટી સાહેબ મને આપ્યું. ગોપકોનું સર્ટી પણ મેં લીધું સાહેબ. આખી એમ? જમીન હા ગોપકો સર્ટી લીધું સાહેબ. भाई ताली बजाओ, इनके ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट किसी के साथ जुड़ाव करे अगर माता जी ने लिया है, गोपको- बहुत बड़ी बात है भाई. આજે ગીર ગાયનું સાહેબ આજે ઘી અમે 5 વર્ષથી ગીરનું દૂધ અને ઘી ઘર માટે પરિવાર માટે બે દીકરી સાહેબ અત્યારે હાલ ટ્રેક્ટર લીધું તમારું સાહેબ. આખું નામ શું છે બેન? અમરતબેન ઉમેશથી ઝાલા ગામ કાણિયાલ તાલુકો દસકોઈ અને ઉત્તમ સાથે જોડાયેલી છું. ઉત્તમ દૂધ મંડળી ઉત્તમ સંઘમાં સભ્ય તરીકે અને મારી મંડળીનું દૂધ ત્યાં આવે અત્યારે 4000 લીટર દૂધનો હું વહીવટ કરું છું. વર્ષે જે વધારો આવે 22% વધારો ગામવાળાને આપું છું સાહેબ આજની તારીખમાં. અને મારી મંડળી સક્ષમ બનાવી મેં અને બધાને એફએમટીની તાલીમ આલું સાહેબ પ્રાકૃતિક ખેતી પોચ પંચાયતમાં. એફએમટીની તાલીમ મારું ઘરનું કામ પૂરું કરીને હું એફએમટીની તાલીમ આપવા જાઉં. દેશની તાલીમ મેં લીધી પ્રાકૃતિક ખેતીની અને પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે બધાને ઘેર જઈને શીખવાડવાનું કે આ પ્રાકૃતિક પીપ મંગાવે બધાને પીપળો પણ મેં લાવડાવ્યો ગવર્મેન્ટથી. જીવામૃત બનાવો. જીવામૃત ઘનજીવામૃત બ્રિજામૃત વાસ્પા આ બધું જ બનાવવાનું. મેં તો આખું ટક્ચર સાહેબ બનાવ્યું. ટક્ચરમાં સીધું ખેતીમાં જાય. 5 વર્ષથી સાહેબ એરિયા ખાતરની થેલી મારા દરવાજા નહીં આવવાની. 5 વર્ષથી નહીં લાવવાનું. આજે મારી સાહેબ નહીં મારા 62 વર્ષની ઉંમર છે. 62 વર્ષ અત્યારે હું ચાલીને 10 કિલોમીટર ચાલીને જતી રહું આજની તારીખમાં. તો થાકની તો ખબર નહીં મને થાક કેવો છે એવું. અત્યારે ગાય દૂધ બધાને નજીક આવ્યા હોય કોક આવ્યા મહેમાન તો આપી દેવાનું 2 લીટર લઈ જાઓ છોકરો ખાવાનો. ચિંતા નહીં કરવાનું. કુદરતે આલી હોય તો વાપરવાનું. ચિંતા કરવાની નહીં. જો ચિંતા કરી હોત તો ગુજરાતના જે પનોતા પુત્ર આપણા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કરી હોત સાહેબ એટલી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નહીં. બેઠા હતો લગી આપણા દિલ્હીની ગાદી ઉપર કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર જ નહીં. જય જવાન જય किसान जय गुजरात. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हम सब ने अपने अनुभव मंत्री जी से साझा किए हैं और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज सहकारिता से आत्मनिर्भरता का मार्ग भारत प्रशस्त कर रहा है. आइए हम सब हृदयपूर्वक निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी से इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें. मेरा आप सभी से 2 ही निवेदन है. त्रिभुवन काका के नाम से त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है. इस सहकारिता यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन काका के नाम पर इसलिए रखा था कि आज देश भर में मैं जाता हूं, हर जगह पे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, छोटी छोटी गरीब परिवार की महिलाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़े हैं. कई जगह पे गुजरात जैसे राज्य में जहां कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश हो गई वहां 1-1 करोड़ रुपया की कमाई होती है. ये मूल विचार जो था वो त्रिभुवन भाई पटेल का था और वो व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने नाम के लिए कुछ नहीं कहा. इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति जब मैं पार्लियामेंट में उनका नाम बोला तो देश भर में ये सवाल था कि ये कौन है. 1 महीने में सभी लोग सोचते हैं कि ये बुरी बात है, मगर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने लिए उन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं करी, केवल और केवल काम करते रहे. और इसीलिए कांग्रेस के विरोध के बावजूद हमने यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे किया है, क्योंकि उसका अधिकार है अब ये यश लेने का. डेयरी के क्षेत्र में ढेर सारा परिवर्तन हम ला रहे हैं. यहाँ बहुत सारी बहनें डेयरी की कोऑपरेटिव चलाने वाली हैं. अब हम आने वाले दिनों में गोबर का प्रबंधन, उनके खान पान का प्रबंधन, पशु की हेल्थ का प्रबंधन और गोबर के उपयोग से
आपकी कोऑपरेटिव की कमाई बढ़े, इसके दिशा में अब छोटे छोटे देश भर में बहुत प्रयोग हुए हैं। हमें सारे प्रयोगों को संकलित कर कर वो प्रयोग का फल हर कोऑपरेटिव के पास पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार योजना बना रही है। मेरी 2-3 बैठकें इसके ऊपर हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 साल में हर कोऑपरेटिव, जो दूध कोऑपरेटिव है, उसका गोबर, जैसे बहन जी ने कहा कि ऑर्गेनिक खातर बनाने के लिए उपयोग होगा, गैस बनाने के लिए उपयोग होगा और कई प्रकार के उपयोग उसमें से होंगे। और आने वाले दिनों में गांव में 500 परिवार मानो दूध उत्पादन का काम करते हैं। इसमें से 400 कोऑपरेटिव में होंगे, 200 प्राइवेट दूध वाले को दूध बेचते होंगे। उनके पशु के गोबर का काम भी हम कोऑपरेटिव को दे देंगे, उनके टीकाकरण का काम भी करेंगे, पशु आहार देने का काम भी करेंगे। तो सभी लोगों ने अपनी जिला डेयरी के साथ संपर्क बनाए रखें। 6 माह में सारी योजनाएं कॉन्क्रीट स्वरूप लेकर आपकी कोऑपरेटिव तक पहुंच जाएगी। परंतु मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइएगा, जिन्होंने गुजरात की सारी कोऑपरेटिव की बहनों को इतना समृद्ध किया है। और उसी के पैटर्न पर, जैसे आनंद से बहन जी आई, उन्होंने क्या, इनके गांव में लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन रुके थे, त्रिभुवन काका उनके साथ में रुके थे और शास्त्री जी को उन्होंने कन्विंस किया कि ये सिर्फ गुजरात में क्यों, इसके आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से आज 19 राज्यों में इस प्रकार की कोऑपरेटिव दूध की गतिविधि चालू हुई। तो यहां से आनंद के तहसील से जो काम शुरू हुआ वो आज 19 राज्यों में पहुंच चुका है। दूसरा, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है और विशेषकर कोऑपरेटिव सेक्टर ने उसको सोचना चाहिए। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती, ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके खेत में ज्यादा बारिश आएगी तो पानी बाहर चला जाता है ना, जाता है या नहीं जाता है, बोलिए ना, जाता है ना। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही केचवे बनते हैं। केचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल डालकर सारे केचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचवा यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। मगर हमने जब यूरिया डाला तो केचवा मर गया। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती
हो सकता है 21 एकड़ का, सिर्फ एक गाय में। और गुजरात में तो गाय के, जो देसी गाय पालेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपया उसको सरकार देती है। आपके नाम पर चेक ही आ जाएगा 900 रुपये का। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करता है। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वो खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बनाई है। और अब बहन जी को गेहूं का भाव 2 गुना मिला, मगर एक गेहूं अमेरिका जाता है तो 6 गुना मिलता है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने एक कोऑपरेटिव बना दिया है। तो सभी लोगों ने, दूध का व्यवसाय करने वालों ने अपने गोबर के लिए भी चिंता करनी चाहिए। और गोबर का उपयोग केवल और केवल प्राकृतिक खेती में करते। बहुत सारे किसान गोबर को ऐसे ही डाल देते हैं खेत में। एक छोटा सा प्रोसेस कर चूना, गुड़, गोबर और 2-3 हल्दी और 2-3 केमिकल डालकर अगर आप जीवामृत बनाकर डालते हो, इसको हिलाकर 36 घंटा रखना पड़ता है। तो एक गोबर कभी यूरिया न डाल पाए ऐसे खेत की रचना करेगा। और आप यूरिया का जो खर्चा करते हो, वो सारा खर्चा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में करिए, खिलौना लाने में करिए और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में करिए। आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आप पुण्य का काम भी करोगे क्योंकि किसी को अच्छी सेहत दोगे। दूसरा पुण्य का काम करोगे, एक देसी गाय का पालन करोगे। और इसीलिए हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा, इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापिस आ जाएगा। ये सारी व्यवस्था भारत सरकार ने के कोऑपरेटिव मंत्रालय ने की है। मैं जब गृह मंत्री बना तब सारे लोग मुझे कहते थे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल गया, देश का गृह मंत्री होना। सरदार पटेल साहब थे तो बहुत बड़ी बात होती है गृह मंत्रालय। मगर जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया उस दिन मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है, जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गांव के लिए काम करता है, बोल नहीं पाते ऐसे पशुओं के लिए काम करता है। आप सब भी कोऑपरेटिव से जुड़े हो, बहुत सम्मान के साथ काम करिएगा। आप लोगों को मिलकर अच्छा हुआ। मैं देश भर में 3-3 राज्यों की ऐसी 10 चौपालें लगाने वाला हूं, इसी प्रकार की खुलकर बात करना। और उसमें से आपके जो सुझाव आज कुछ आए हैं, ऐसे आएंगे, तो उसके आधार पर सहकारिता मंत्रालय का आगे का काम भी हम करेंगे। कुछ ऐसा लगता है तो मेरे नाम से मेरे घर के पते पर चिट्ठी भेज देना, मैं खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। और अगर कोई सुझाव नहीं है तो घर में अच्छा प्रसंग है तो निमंत्रण तो जरूर मुझे भेज देना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। ढेर सारी थकान, ढेर सारा तनाव, ढेर सारी चिंताएं, जब इतनी हंसकर बहनें साथ में बैठती है तो अपने आप उतर जाता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।